Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, सभापदेश 3 अध्याय और पहले वाक्य में लिखा हुआ है, to everything there is a season, हर एक बात का एक अवसर, a time for every purpose under और heaven. प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, it's rather unfortunate. दुर्भाग्यवश Many of us do not understand the times and seasons of our life. हमें से बहुत लोग नहीं समझते हैं हमारे जीवन में वो अवसर और उन समयों को। When you go out and sow the seed in the wrong season, और जब हम जाकर बीज को बोते हैं गलत समय में, you cannot expect a great harvest to come your way. तो वहाँ पे हम उपज की अपेक्षा नहीं कर सकते It's हैं। next to impossible. ये असंभव के ही बराबर है। But if you are somebody who's a farmer, लेकिन अगर आप किसान हैं, you keep watching the sky, तो किसान जो है आकाश की ओर देखता you रहता है। understand the times and the seasons, आप जो है किसान जो है वो अवसर और समय को समझता है। you will not make the mistake of sowing the seed in the wrong तो season. किसान जो है ये गलती कभी नहीं करता कि गलत समय में बीज को बोए। He knows there is a time for him to plow and break the ground. वो जानता है कि एक समय है जहाँ पे उसको जमीन को जोतना पड़ता He है। knows that there is a time that he has to wait for the rain to come and soak into that ground. और उसको ये भी मालूम है कि ऐसा समय होता है जहाँ पे वर्षा होगी और जमीन जो है वो गीली हो जाएगी। And when that happens, he knows at the right time he has to sow the seed. और ये भी जानता है वो कि सही समय पर उसको बीज को बोना है। And you know what? He understands that the seed germination will take time. और वो इस बात को भी समझता है कि अंकुर या बीज को फूटने के लिए समय लगता He है। understands when the seed is germinating, और वो समझता है जब वो बीज जो है उगने लगता है या बढ़ने लगता the है, seed is taking root in the ground. He understands. वो ये भी समझता है कि ये बीज जो है जमीन में जड़ पकड़ रहा He है। understands that unless it takes root in the ground, it will not sprout out. वो इस बात को भी समझता है कि जब तक ये बीज जो है नीचे जमीन में जड़ को नहीं पकड़ेगा तब तक जो है ऊपर ये फूटेगा नहीं। When it sprouts out, अब जब ये ऊपर फूटता है, he watches over it. वो उसको देखे रहता He है, protects it. उसको बचाए रखता He है, preserves it. संभाल कर रखता He है। understands the condition of that sprout. वो उस पौधे की स्थिति को समझता है। You know what? There comes a particular time अब जानते हैं ऐसा समय भी आता है, as it grows up, जैसे ये पौधा बढ़ता है, this little sprout brings forth a great harvest. ये छोटा सा पौधा जो है आगे चलकर महान फसल को लाता है। I want us to understand this allegory in our life as a Christian. हम चाहते हैं कि इस संदर्भ को देखते हुए हम समझे अपने जीवन में विश्वासी होने के नाते कैसे होता है। Even every believer who accepts Jesus Christ of Nazareth passes through different seasons of life. हर एक विश्वासी जो नजरती यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारती है, अपने जीवन में विभिन्न क्रिया से गुजरता है। You know, when you receive the word, जब आपने वचन को स्वीकारा, a particular seed, the seed of the good news was sown into you. और देखिए सुसमाचार का, शुभ संदेश का बीज आप में बोया गया। You know, the Lord worked in your heart and that seed germinated in your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय में काम किया और वो बीज ने आपके जीवन में जगह लिया। And you need to take root in the word of God. और देखिए आपको वचन में जड़ पकड़ लेना है। When you take root in the word of God, जब आप वचन में जड़ पकड़ लेते that हो, is when you sprout out. तब जाकर जो है आप उगने लगते हो, बढ़ने लगते When the हो। wind comes, और जब हवा आती है, when the wrong rains come, जब गलत बारिश or आती है, rather the untimely rains come, या फिर बिन समय की जब बारिश आती है, what makes you to stay stuck to the ground is, और किस वजह से आप जो है जमीन को पकड़े हुए रहोगे, it is your ability to depend on God. या आपकी क्षमता होती है कि आप परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी it बहनों, doesn't stop there. वहां पे रुकता नहीं है। Even you come to the next season of life. और फिर आप अपने जीवन के अगले समय में आते हैं, When they come to the next season of life, और जब आप अपने जीवन के अगले समय में the आते हैं, lots and lots of trials and tests will come. और बहुत सारे क्लेश, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। When those tests and the trials come, और जब क्लेश और परीक्षाएं आती हैं, you need to stand your ground firmly rooted in the word. आपको जो है दृढ़ बढ़कर खड़े रहना है, वचन में जड़ पकड़े हुए। You cannot say, oh, it's my harvest time. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे अब ये मेरा समय है कि मैं कतनी को काटूं। You cannot look at other Christians who are in a different season and say, oh,
harvesting, why can't I harvest now? आप दूसरे मसीह लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते हैं, अरे वो लोग तो फल को काट रहे हैं या फिर वो लोग तो कटनी को काट रहे हैं, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। Let me tell you this very clearly. मैं आपसे स्पष्ट रीति से कहूँ, They are in the different season of their life, वो अपने जीवन के अलग समय में है, अलग मौसम में and they है, have seen it all. और उन्होंने वो सारी चीजों को It देखा is है। their time to harvest. ये उनका समय है कि वो उपज का आनंद उठाएं। Don't feel jealous. आप ईर्ष्या मत करिएगा, Don't complain. आप शिकायत नहीं Don't करिएगा, grumble. आप कुड़कुड़ाना मत। Understand that you are in this particular season, आप ये बस समझ लीजिएगा कि आपका समय ये है, and that season will pass away. Understand और that, ये भी समझ लीजिएगा कि ये भी समय निकल जाएगा, and then the next season will come, और फिर अगला समय आएगा, अगला अवसर आएगा, and that when that season comes, और जब वो अवसर और समय आता है, you too will begin to harvest very great. आप भी उपज का आनंद उठाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I want us to understand one thing. इस बात को समझ लीजिएगा, God doesn't care which season that you were in. और परमेश्वर जो है इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आप कौन से मौसम में थे, God doesn't care which season you want to be in. और परमेश्वर इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि कौन से मौसम में आप होना चाहते God हैं। only gives you the grace in the season that you are in. परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं बस ये समय के लिए, जो समय में, जो मौसम में आप हो। If you understand that, अगर आप इस बात को समझ लेते if you हैं, are open to receive grace for that season, अगर आप इस समय के लिए अनुग्रह को लेने के लिए तैयार हैं, the Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य He है, will grant you the grace that is needed, वो आपको अनुग्रह देंगे, जो अनुग्रह की जरूरत आपको है, that much needed grace जो अनुग्रह की जरूरत आपको है, that will help you to see through that season, और जिसकी वजह से, वो अनुग्रह की वजह से आप इस मौसम को पार कर that पाएंगे, helps you and ushers you to the next season. और जिसकी वजह से आप अगले समय में, अगले अवसर में, अगले मौसम में आ पाओगे। He loves you. वो आपसे प्रेम करते He हैं, is ready to supply the grace to you. वो उस अनुग्रह को आपको देने के लिए तैयार हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी but बहनों, it is a must for you to understand which season that you are in. लेकिन बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाए कि आप कौन से समय में, कौन से मौसम में है। If you miss the season, अगर आप उस मौसम को, उस समय को चूक देते you हैं, will miss the harvest. तो फिर उपज का आनंद नहीं उठा पाएंगे। Hope that you understand what I'm trying to tell you. मेरी आशा है कि आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। Cry to God. आप प्रार्थना कीजिएगा, Ask God. परमेश्वर से मांगिएगा, God, tell me which season that I am in. हे परमेश्वर मुझको कहे, मुझको बोल कौन से मौसम में मैं हूँ, And understand it from the perspective of God. और परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, Understanding through the word of God. वचन से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, Understanding through the power of the nudgings of His Spirit. पवित्र आत्मा जो आपको बताते हैं उनसे समझने का प्रयास कीजिएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, you shall make the most of the season that you are in. तो जिस मौसम में है आप उसका अधिकांश लाभ उठा पाएंगे। I want you to go with these thoughts in mind हम into the चाहते day. हैं दिन में आप इन विचारों के साथ में जाइएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते the हैं, Lord will bless you immensely. परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ हैं, God संग है, loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।